کہ نیچے کو لبیک کے نوجوان نعرے لگا رہے تھے، اور نعرہ وہ کیا لگاتے ہیں؟ لبیک یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ سٹیج سے ان کو ڈانٹ ڈپٹ کی جا رہی تھی، اس کی وجہ سے اور زیادہ درمیان میں ان کے آپس میں نوجوانوں میں اشتعال پھیلا۔ اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی خیر فرمائے۔ آپ حضرات جیسے میں آپ کو یاد رکھتا ہوں، آپ بھی یاد رکھا کریں، اس کو لائک کر دیا کریں، شیئر بھی کر دیا کریں، اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ یہ بھی کر لیا کریں۔ آپ کا حصہ بھی ہمارے اس کار خیر میں شامل ہو جائے گا۔ خبریں خبریں ہیں، خبریں ہی خبریں ہیں، خبر ہے گرم ان کے آنے کی، پتہ نہیں کیا تھا کہا اس نے، آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا۔ لاہور میں پہلے کانا والا واقعہ ہوا، اور اس کے بعد واقعات تو بے شمار ہیں، بہت سارے رپورٹ بھی نہیں ہوتے، بہت سارے لوگ بیچارے اپنی عزت کے لیے تھانوں تک نہیں جاتے، لیکن یہ کانے والے واقعے میں 14 بچے شہید ہوئے، غریب گھروں کے تھے۔ محترمہ نے جا کے ان کے ہاں کوئی ٹک ٹاک بنائی اور اعلان کیا کہ ٹیوشن پڑھانا ہی بند کر دیں گے، پورے پنجاب میں ٹیوشن پہ پابندی۔ ٹیوشن کون پڑھاتا تھا؟ محترمہ میٹرک پاس، ایف اے پاس بچیاں جو گھروں سے پریشان ہوتی ہیں اپنے 2 وقت کے کھانے کے لیے، اور ان کے لیے کوئی روزگار کا ذریعہ بھی نہیں ہوتا، وہ یہ کام شروع کر لیتی ہیں، گھروں میں بچوں کو ٹیوشن پڑھا کے اپنی گزر اوقات کر لیتی۔ تو آپ نے شاید اپنی طرف سے تو بغیر سوچے سمجھے ہی کسی ایک کچے ٹیوشن سینٹر جو جس کی چھت گر گئی ہے، وقتی طور پہ واہ کروانے کے لیے ٹیوشن سینٹروں پہ پابندی لگا دی ہے، لیکن شاید آپ نے یہ نہیں سوچا کہ آپ نے ہزاروں لاکھوں بچوں کا روزگار چھین لیا۔ پابندی لگا کے آپ نے کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ ہمارے ہاں تو محلوں میں، گھروں میں جو خواتین پڑھی ہیں، بچیوں کو قرآن پڑھاتی ہیں، جو خواتین کو سکول پڑھی ہوئی ہیں، کالج پڑھی ہوئی ہیں، وہ یہ درمیانے یا غریب گھروں کی بچیوں کی بات کر رہا ہوں، بڑے گھروں کی بچیوں کے مشاغل تو اور ہیں، اب وہ یہ بیچاری اپنا گھر چلا لیتی۔ تو اپنے اس فیصلے پہ فوراً نظر ثانی کریں، جن بچوں کا، جن گھروں کا نقصان ہو گیا ہے، اور اس کا ازالہ تو آپ نہیں کر سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جانے تو آپ پیسے دے سکتے ہیں، کچھ اور چیزیں ان کو دے سکتی ہیں، لیکن جانے تو واپس نہیں آ سکتی نا۔ ایسی چیزوں کی روک تھام کا کوئی بندوبست ضرور کریں، اور ایسا کریں کہ ٹیوشن سینٹروں کی چیکنگ کر لیں، اس قابل ہیں کہ نہیں وہاں بچے بیٹھ سکیں، کہیں گنجائش سے زیادہ تو بچے نہیں ہیں، لیکن پڑھانا بند کر دینا، یہ پہلے ہی کوئی 1.5-2 کروڑ بچہ سکولوں سے باہر ہے، جن کے پاس استطاعت ہی نہیں ہے بیچارے ماں باپ کے پاس کہ وہ پڑھا سکیں، انہوں نے یا مانگنے پہ لگائے ہوئے ہیں، یا لیبر چھوٹے بچے کہیں نہ کہیں کسی کام پہ لگائے ہوئے ہیں۔ ان پہ توجہ دیں، اور ٹک ٹاک پہ زیادہ توجہ نہ دیں، اور ان بچوں پہ، ان بیبیوں پہ، ان خواتین پہ۔ آپ نے تو کہا تھا کہ خواتین میری ریڈ لائن ہے، ریڈ لائن تو بی آپ کی کراس ہو رہی ہے، روز یہاں خواتین کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ اب ایک بڑا واقعہ جو 2-3 دن سے پورے میڈیا پہ چھایا ہوا ہے، اسحاق ڈار صاحب کے نواسے کا، وہ تو آپ کے گھر کا مسئلہ ہے، اور وہاں جو کچھ ہوا ہے، میں اس واقعے سے بالکل ہٹ کے جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے اس پہ آپ سے ضرور کہوں گا کہ یہ 2 پاکستان نہ بنائیں، غریبوں کے لیے، اور غریبوں کے بچوں کو تو سیدھی گولی ماری جاتی ہے، فارغ۔ اور جتنی رپورٹیں آپ کی سرکاری غیر سرکاری آ رہی ہیں، 1.5-2 سال میں 1,500-2 ہزار بندہ آپ نے پھڑکا دیا ہے، اور جب حکومت جائے گی بدلے گی، بدلنے والی نظر آ رہے ہیں حالات، آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے کہ آپ پہ کیا گزر رہی۔ جب حالات بدلیں گے تو کوئی ان کا حساب ضرور لے گا۔ یہ جو CCD آپ نے بنائی ہوئی ہے، یہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، غیر اخلاقی ہے، جس پہ مرضی کوئی الزام لگائے اور اس کو پار کر دے، اور اسے یہ موقع بھی نہ دیا جائے کہ وہ جا کے عدالت میں اپنے آپ کو بری کروا سکے، سچ سامنے لا سکے۔
पुलिस के हाथ में सारा इख्तियार है, जो चाहें करें, जिस धमकियाँ भी देते फिरते हैं अपने मुखालफों को कि तुम्हें उड़ा देंगे। बहरहाल इस वाक़े में मेरे लिए जो 2-3 चीज़ें परेशान कन है, किसी के ज़ाती मसाइल पे मैं गुफ्तगू नहीं करता, ना मेरा ये शोर है। किसी के घर का मसला है, बच्चे का है, बच्ची का है, अल्लाह ताला सब के बच्चों और बच्चियों को हिदायत पे रखे, सीधे रास्ते पे रखे। इसमें 2 चीज़ें, एक तो जज के घर जाके रात को उसको उठा के उस पर प्रेशर डाला जाना, ये आपके सिस्टम के मुंह पे एक ज़ोरदार तमाचा है। जज के घर जाके दरवाजे तोड़ के या दीवार फलांग के उसको उठाना और कहना अभी आओ, अभी करो, फलां का फ़ोन आ रहा है, ये किसी सूरत भी इसकी हिमायत नहीं की जा सकती, बल्कि मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। और जज साहब ने जुर्रत का मुजाहरा किया। काश सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज भी जुर्रत का मुजाहरा करते तो आज पाकिस्तान के हालात बहुत बेहतर होते। आज हम दुनिया में 140वें नंबर पे ना होते, हमारा पासपोर्ट दुनिया में आखिरी नंबर पे ना जाता, हम दहशत गर्दी में, अमन व अमान, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल में दुनिया के छोटे छोटे मुल्कों से जहां बिल्कुल सूरत हाल ख़राब है उनसे भी नीचे ना होते। आज अगर हमारे जज साहिबान इस लाहौर के मजिस्ट्रेट की तरह खड़े हो जाते सामने, सुबह भी उन्होंने कहा पहले उस SHO को लाओ, मेरे पेश करो, उसके बाद मैं केस शुरू करूँगा, और फिर SHO को आपने मुअत्तल किया। और जो कुछ 2 नंबरी इस केस में की गई, करने की कोशिश हो रही है, मैं नहीं कहता, मुझे तो हालात ज़्यादा पता भी नहीं होते, मैं तो मोटी मोटी खबरें सुन लेता हूँ। नजम सेठी साहब कह रहे हैं, आपके और बहुत लाडले साफ़ी कह रहे हैं कि उन 2 लड़कियों को मुल्क से फारग करके भेज दिया गया, केस ख़त्म। अब ना कोई नवासा साहब को पूछेगा, ना कुछ साथियों को पूछेगा, ना कोई बास को पूछेगा। हाँ, फैसल वावडा साहब का बयान भी मैंने सुना परसों। उन्होंने कहा कि अगर थोड़ी बहुत गैरत हो, ज़मीर जाग रहे हैं, थोड़े से भी अगर जाग रहे हैं, तो ये खबर छपते पहले इस्तीफ़ा दे के इस केस को किसी एक तरफ लगा के इससे बरी होके दोबारा वजारत संभाल लेते तो ठीक है, लेकिन इस तरह वजारत के साथ चिमटे रहना। अब ये केस रिपोर्ट हो रहा है पूरी दुनिया के मीडिया में, और ख़बर क्या आ रही है, पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर, वज़ीर ख़ारजा और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब नायब वज़ीर आज़म साहब के बेटे औरतों बच्चियों को अगवा करते हैं, उनके साथ रैप करते हैं, उनसे बत्ता लेते हैं। ये सारी खबरें पूरी दुनिया के मीडिया में चल रही हैं। आप अगर इतने अहम ओहदे पे ना होते तो शायद मैं कभी भी इस पर गुफ्तगू ना करता। अब आपकी ज़िम्मेदारी है अपने मुल्क की इज़्ज़त बचाएं, अपनी अना बचाने की बजाय और सारे निज़ाम को मज़ीद बिगाड़ने की बजाय अपने मुल्क की इज़्ज़त का ख्याल करें और इंसाफ और अदल के साथ जो कुछ हुआ है उसके मुताबिक कानूनी कार्रवाई होने दें। अल्लाह ताला रहम फरमाए। दूसरी खबर, कल अहले सुन्नत व जमात के लिए बड़ी खुशी की बात थी। काफ़ी देर बाद लब्बैक वालों ने कॉल दी हुई थी 3 जुलाई की। जियो और दीगर जो चैनल जिन्होंने गुस्ताखी की है उनके ख़िलाफ़ कराची में बहुत बड़ा इज्तिमा था, लाहौर में भी प्रोग्राम था। वहाँ बहुत सारे लीडर मैंने देखे स्टेज पे, फेसबुक पे, और वो लीडर आपस में लड़ पड़े। खबर ये थी तंजीमात अहले सुन्नत का मुश्तरका एहतजाजी प्रोग्राम। वहाँ मुझे समझ तो नहीं आई, वहाँ वैसे भी समाअत मेरी मुतासर है, लेकिन इतना मैंने देखा कि महसूस ये हुआ बातों से कि नीचे को लब्बैक के नौजवान नारे लगा रहे थे। और नारा वो क्या लगाते हैं, लब्बैक या रसूल अल्लाह, ताजदार ख़त्म नबुव्वत जिंदाबाद। स्टेज से उनको डांट डपट की जा रही थी। उसकी वजह से और ज़्यादा दरमियान में उनके आपस में नौजवानों में इश्तियाल फैला। चलें, ख़त्म हो गई बात, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। अब जो खतरनाक बात मैं देख रहा हूँ, मैं किसी के बारे में भी कोई जज नहीं हूँ, ना मैं वहाँ था, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ, अब पोस्टें आ रही हैं कुछ सरबत एजाज के ख़िलाफ़, कुछ सरबत एजाज के ग्रुप की तरफ से लब्बैक के ख़िलाफ़,
लब्बैक वाले दावा कर रहे हैं कि ये प्रोग्राम हमारा था, इन्होंने कब्जा किया ऊपर, ये अकेले करके दिखाएं हमें। सुन्नी तहरीक वाले अब एक दूसरे के खिलाफ बहुत कुछ कह रहे हैं, वो इनके खिलाफ कह रहे हैं कि तुम्हारी इन्हीं। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुंतज़मीन ने इंतज़ामिया से कोई वादा किया था कि कोई झंडा किसी ऐसी जमात का जिसके इंतज़ामिया खिलाफ है नहीं लगेगा, कोई नारा नहीं लगेगा, यूँ इस वजह से शायद कुछ मुकर्रीन जो थे वो मजमे में शामिल नौजवानों को डांट डपट कर रहे थे। ये सारी कोई बातें नहीं हैं, इसकी वजह से आपको लड़ना नहीं चाहिए। पहले लड़ लड़ के हम जहां पहुंच गए हैं उस पे हर शख्स परेशान है, हर शख्स उसके बारे में सोचता है, बैठता है, बात करता है। लेकिन जिन लोगों को इस सूरत हाल को ठीक करने के लिए इक़दामात करने हैं वो अभी तक लड़े जा रहे हैं। उनको अपने अपने गुस्से पे काबू पाना चाहिए, अपने आप को ठंडा करना चाहिए। मैंने कल सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हु की याद में आपके ज़िक्र पाक में जुमा में कुछ गुजारिशात की थी और अर्ज़ किया था, जितनी बड़ी सल्तनत उनके पास थी, जितना बड़ा इख्तियार, महबूबियत, मकबूलियत, मुसलमानों में उनकी पसंदीदगी, उनके साथ वालहाना अकीदत थी, उसका तो कुछ तसव्वुर भी नहीं कर सकता। पहले नंबर पे इमाम हसन, दूसरे पे इमाम हुसैन, दोनों भाइयों ने उम्मत के इत्तेहाद के लिए, मुसलमानों की सुलह के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। हुकूमत भी कुर्बान कर दी, अपना इख्तियार भी कुर्बान कर दिया, अपना इक़्तिदार भी कुर्बान कर दिया। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे ये फरमा दें कि उनकी शान में कोई कमी आई कि और ज़्यादा हो गई? तो हज़रत अमीर माविया ने भी उसी दिन, जिस दिन ये सुलह, उसी दिन कह दिया कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इमाम हसन जैसा बहादुर नहीं देखा। और बहादुर वो है जिसको सरकार ने फरमाया जो अपने गुस्से पे काबू पा ले। सवाल किया सहाबा से, बहादुर कौन है? और उन्होंने अपने अपने अर्ज़ की गुजारिशात, फरमाया नहीं, बहादुर वो नहीं है जो दुश्मन पे काबू पा ले, बहादुर वो है जो अपने गुस्से पे काबू पा ले। तो ये हदीस मुबारक सुनाने वाले सारे उलमा से मैं पूछ रहा हूँ कि क्या आपने, ये हमारे लिए नहीं है, ये लोगों के लिए है, ये कायदीन के लिए, हम क्या नाम तो हम लेते हैं सब, हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। उनके तो बाप से जंग हुई थी, उनके वालिद गिरामी से जिस फरीक की जंग हुई थी, हज़ारों शहीद हुए थे, उनसे सुलह कर ली, सारा इख्तियार सरेंडर कर दिया। यार कभी थोड़ा सा बयान करने वाले उसको इस नुक्ता नज़र से भी देख लिया करें कि अगर कभी हमें ज़िंदगी में इस पे अमल पैरा होना पड़े तो हमें भी इस पे अमल करना चाहिए। तो मैं उन तमाम कायदीन से मुअद्दबाना गुजारिश ये को मैं उनको तकरीर नहीं सुना रहा, याद दहानियाँ करवा रहा हूँ कि इस वक्त हमारे लड़ने की कोई ज़रूरत रह गई है? बाकी पहले लड़ लड़ के हम कहाँ पहुँच गए हैं। लब्बैक वालों से भी कहता हूँ, सुन्नी तहरीक वालों से भी, बाकी तंजीमात वालों से भी, अपना अपना गुस्सा थूक दें और एक मीटिंग करें उन कारकुनों को शाबाश देने के लिए, शुक्रिया अदा करने के लिए जिन्होंने कल का आपका प्रोग्राम कामयाब बनाया, और आपस में गुस्सा दूर करके इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ आगे बढ़ने का कोई लाहा अमल बनाएं कि हमने आगे बढ़ना है, जो जो हमारे नुकसानात हुए हैं उनका इजाला कैसे करना है। अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाए। एक छोटी सी खबर और है, तो बड़ी है लेकिन मैं थोड़ी सी बयान कर देता हूँ। 2 दिन पहले चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान याह्या अफरीदी साहब ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई हुई थी जिसमें 4 वज़राए आला मौजूद थे। सबसे बड़े सूबे पंजाब की वज़ीर आला साहबा, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला, सिंध के वज़ीर आला, बलोचिस्तान के, चारों ने झूठ बोला टका के, और चीफ जस्टिस के सामने, और चीफ जस्टिस ने भी झूठ बोले। आप पूछेंगे, सवाल करेंगे कि मौलाना साहब क्या झूठ बोले? मरियम ने कहा मेरी जेलें, मेरे पंजाब की जेलें बड़ी ज़बरदस्त हो गई, और उसने, सुहेल अफरीदी ने कहा मेरी जेलें बड़ी ज़बरदस्त हो गई, और मुराद अली शाह ने कहा मेरी जेलें, और जिस सूबे में आग लगी हुई है उसके वज़ीर आला सरफराज बुगती ने कहा मेरी जेलें। तो मैं चारों को चैलेंज करता हूँ कि आएँ, मुझे साथ ले चलें, मीडिया को भी साथ ले चलें, दिखाएं कौन सी जेल है आपकी ठीक। एक जेल जो मैंने देखी, बड़ी जेल है, पाकिस्तान की जेलों में से बड़ी जेल है कोट लखपत जेल। पहले दिन जब मैं गया वहाँ, 7 साल पहले की बात कर रहा हूँ, बोलता रहता हूँ, और कभी कभी हुक्मरानों को नागवार गुजरता है तो उनके पास एक ही हथियार होता है, गिरफ्तार कर लो, बंद कर दो।
पहले दिन जब मैं जेल में गया तो जो कोठरी थी मरियम साहबा, उसमें 2 आदमियों की गुंजाइश थी, उसमें 5 आदमी थे, मुझे भी उसमें धकेल दिया। तो मैंने उस जेलर से कहा कि शर्म करो, यहाँ तो 2 आदमियों की गुंजाइश। फिर उसने वहाँ से मेरे बोलने की वजह से 1 आदमी निकाला। 4 आदमी एक ही जगह लेटे हुए थे, किसी का सर, किसी के पाँव, वहाँ ही अंदर छोटी सी जो लैट्रिन वाशरूम बनाया हो छोटा सा, जिसमें कोई पर्दा भी नहीं है, कोई चादर भी नहीं लगी हुई, वो 4 आदमियों के सामने ही एक दूसरे ने पेशाब करना। वहाँ ही उन्होंने अपने खाने वाले बर्तन धोने उसी गंद में। कहाँ आपने जेलों में सहूलतें दी हैं? वो जेलों में सहूलतें जो आपने देखी हैं वो आपको मिली थी, वीआईपी क्लास मिली थी आपको। आप कह रही मेरे सूबे में जेलें बड़ी अच्छी हो गई है, मैंने बटन लगवा दिए, पता नहीं कौन से बटन लगवा दिए। हाँ, फिर दोबारा कहता हूँ चीफ जस्टिस साहब, आपने आंखें बंद की हुई हैं। जेल में 2 कैदियों की आंखें ज़ाये हो गई। पाकिस्तान का मकबूल तरीन नहीं, दुनिया का मकबूल तरीन क्रिकेटर और पाकिस्तान का मकबूल तरीन सियासतदान, 90% अवाम के वोट लेने वाला, उसकी आंख, आपकी अपनी रिपोर्ट है सरकारी, 85% आंख ज़ाये होगी, अब तो पूरी हो गई होगी। आपने इलाज की सहूलत भी नहीं दी। हाँ, मरियम को, मरियम के पापा को, मरियम के चाचा को इलाज की सहूलतें थी, उनको लंदन में इलाज के लिए भेजा गया और इलाज के लिए 1 हफ्ते की रुख्सत मिली। 4 साल रह के आए, दोबारा जेल नहीं जाना पड़ा उन्हें, बल्कि जेल को और अदालत को उनके इस्तकबाल के लिए तशरीफ़ लाना पड़ा वहाँ, बल्कि हाजिर होना पड़ा एयरपोर्ट पे। तो चारों वज़राए अल्लाह बैठ के झूठ बोल रहे हैं अवाम से। मैं जब बाहर आया था तो मुझे मिलने नून लीग के मेरे कुछ दोस्त जो MNA हैं और कुछ मिनिस्टर हैं तशरीफ़ लाए, तो मैंने उनसे कहा आप भी इमरान खान के दौर में जेल में 9 महीने रह के आए हैं, मैं भी रह आया हूँ, आपके दौर में वो रहेंगे और आपके दौर में पीपल पार्टी वाले जरदारी साहब और उनके साथी भी रहे, कारकुन भी रहे, तो कोई आपने सोचा कि जेलों के कुछ हालात ठीक कर दें? बहुत जी कहने लगे, बहुत आपने अच्छा किया। हम तो वहाँ बैठे रोज़ सोचते थे कि अगर बाहर गया, हमें मौका मिला तो अब जेलें ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं। उनको बाहर आके भूल गया अब कि जेलों में भी कुछ लोग रहते हैं। जेल में अगर 4000 की गुंजाइश है तो 10,000 बंदे ठोसे हुए हैं। सहूलतें क्या है मुझे भी बताएं कि जेल में कौन सी सहूलतें हैं माँ सिवाय वीआईपी को। और वीआईपी वो जिनकी कबूलियत हो, मकबूलियत नहीं, जिनकी कबूलियत हो बड़े दरबार में, उनको सहूलतें हैं। और जो मेरे जैसे कारकुन हों उनको खाना देने आने वाले को भी नहीं मिलने दिया जाता, वो भी बाहर से पकड़ के पुलिस का सिपाही, मर्जी आ जाए तो खाना दे जाए, मर्जी आ जाए तो खुद ही खा जाए। अब बहुत सारों के साथ तो ऐसे ही होता है। तो इस पर ज़रा तवज्जो फरमाएं, जेलों के हालात ठीक करें। वहाँ आपके सियासी रहनुमाओं ने सारा कुछ देखा है और आपने भी देखना है, हम तो देखते रहते हैं। अल्लाह करे को मुल्क का निज़ाम ऐसा बन जाए कि ना जाएं लोग, लेकिन अगर किसी को जाना पड़े तो उसके साथ कम अज़ कम कह रहा हूँ इंसानों वाला सलूक हो और दुनिया में हमारी बदनामी की बजाय मुल्क का नाम ऊँचा